So there is a parliamentary committee which is going into the prospects of one nation, one election. Have you had any opportunity to change your position on this? Are you now okay with the double ticket election, or do you still hold the view that it should be separately? Because the Biju Janata Dal in the past has said that since they have anyway a double ticket election, they have assembly and Lok Sabha elections together, as does Andhra, they were quite okay with it. So my question is the same for all three of you. One nation, one election. What is your current view on this, and how do you think it is harming or helping regional parties? Since the leadership issue is left to the people, people should be wise enough to, say, differentiate in a double ticket election? Yes, I mean, there was a discussion and a debate that one nation, one election would definitely harm the regional parties. We didn't get into the fine aspects of it, but as a policy, like I said earlier, in the larger interest of the nation, my party supports one nation, one election. So we're very clear of that. We are not at all ambiguous on that. But having said that, we are equally confident about the electorate, like what happened, like say in Orissa. For parliament, they could have voted for one party, and for the state, they voted for one party. So keeping that in mind, and also the fact that constant elections are not in the larger interest of the nation, we felt that one nation, one election should be the right option for the country. And as and when it comes, my party would definitely support it. What about Dr. Mishra? So first of all, again, this one nation, one election idea has been presented as if it's some magical new idea. If you look at the first 4 or 5 elections in this country, they were always simultaneous elections. Odisha, Sikkim, Arunachal, Andhra Pradesh have had simultaneous election for last several years. The question is not about a catchy title and whether we should have it. The question is, what are the details? What are the nuances? Is it likely to strengthen our democracy? Is it likely to weaken our democracy? Would local issues be neglected because of the preponderance of national issues? Would the terms of various parliamentary or assemblies get reduced to a great extent? How do we manage all of that if the government falls in between? The whole purpose of having simultaneous election, if is that the election as a kind of festival doesn't keep on running, the moment a government falls again, it becomes a reality. So I think every larger national issue that impacts the constitution, that impacts people's life, the democratic fabric, needs to be in more detail, explicitly stated, debated, consulted, and then a view be taken. That has been Biju Janata Dal's view on most of the subjects of this kind. And we are always in favor of whatever is in the interest of the country and whatever is in the interest of people of Odisha. But we need to know the details, we need to debate, and must be part of that dialogue. जावेद साहब, आपका क्या कहना है? मेरी पार्टी ने शुरू से ही वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का विरोध किया है। हम ये समझते हैं कि राज्य स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो इश्यूज डिफरेंट होते हैं, और केंद्र में जब चुनाव होते हैं तो इश्यूज डिफरेंट होते हैं। जो बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, वो रीजनल पार्टियों को इस तरीके से ख़त्म कर देगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये इस देश के संघीय ढांचे को भी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करेगा। ये अगर किसी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के बाद ये विचार आता कि देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए, इस पे चर्चा होती और एक सहमति सी देश के अंदर आती, तो हम इस पर गौर करते। लेकिन ये विचार एकात्मक शासन प्रणाली, जो आरएसएस की विचारधारा है कि देश में एक ही शासन प्रणाली हो, उससे आता है। यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को पूरे तरीके से ध्वस्त करने का विचार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है। संघीय नहीं संघ का है। हैं? संघीय नहीं संघ का है। हाँ, संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है। मैं बहुत छोटी सी 2 कोटेशंस गोलवलकर साहब की, जो इनके इंस्पिरेशन का सोर्स हैं बीजेपी के, मैं वो 2 कोटेशंस आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो 1961 में जब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ, तो गोलवलकर साहब ने उसको एक संदेश भेजा। उन्हें इनवाइट किया गया था, वो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा। उस संदेश में उन्होंने लिखा कि आज की संघात्मक राज्य पद्धति पृथकता की भावनाओं का निर्माण तथा पोषण करने वाली, एक राष्ट्र भाव के सत्य को एक प्रकार से अमान्य करने वाली एवं विच्छेद करने वाली है। इसको जड़ से ही हटाकर तदनुसार संविधान शुद्ध कर एकात्मक शासन प्रतिस्थापित हो। यानी फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कीजिए और एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम जो है, उसको आप देश के अंदर कायम कीजिए। दूसरा, जब 61 के बाद 66 में उन्होंने अपनी बड़ी मशहूर किताब, जो एक तरीके से गीता और कुरान है बीजेपी के लोगों का, बंच ऑफ थॉट, जब वो लिखा तो उसके अंदर एक चैप्टर समर्पित किया एकात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्यता। और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने जो अपना लिखा वो ये है कि इस लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्व का प्रभावी कदम ये होगा कि हम अपने देश के विधान से संघीय ढांचे की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त अथवा अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दें तथा एक देश, एक राज्य, एक विधानमंडल, एक कार्यपालिका घोषित करें। ये आरएसएस का विचार है और पूरे देश को एक यूनिटरी सिस्टम में जकड़ना चाहते हैं। उसके अंदर एक भाषा, एक धर्म, एक देश, इस तरीके की बातें जब ये करते हैं, उसी से ये विचार निकला है। तो मेरी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है और संघ की विचारधारा और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो इस विचार को हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हालांकि फेडरल स्ट्रक्चर को पहले जो कांग्रेस का शासन रहा था उसमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी रीजनल पार्टियों के बढ़ाव को देखते हुए, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इस देश को फेडरल स्ट्रक्चर देने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, उन्होंने जो फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक किए थे वो उनका आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन नहीं था, लेकिन बीजेपी का आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन है कि इस देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, एकात्मक शासन प्रणाली होनी चाहिए। मैं इसका विरोध, मेरी पार्टी करती है।